Come in. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है You know what is probability? What is probability? What is probability? What is probability? Define it. What is probability? Do you know or not? No. Have you ever heard the name of probability? Yes, ma'am. 1 minute. I'm not asking you, please. Have you ever heard the name of probability? Only name. So what is it? You said that you don't know. And you are saying you have heard that. And not only name. That means except the name you know many things. You may know. So what is it? Come in. What is it? From you two, anyone can define what is probability? And then the circumstances of outcome. What is it? What is it? Ma'am, the outcome का chance कितना आ सकता है? Flow में. चांस कितना आ सकता है? मतलब That वही बोले तुम बोल रहे हो। तुम लोगों से तो पूछा नहीं है, तो जिससे पूछ रहे उसी से बात करने दो मुझे, और वही आंसर करेगा। बोलो, आपको बोलना है। स्टैंड अप, स्टैंड अप। डिफाइन प्रोबेबिलिटी। some favorable outcome by Some favorable outcome. Some favorable outcome. What is it? Some favorable outcome. Like what? Can you give any example of it? Keep words in mind. Do you have any example for it? Any example? Don't have example. size. Size is an example of what? Probability. And then the chances of from the number between 2 and 6 that it may come 1, 2 or 3 or 6 numbers. And how is this calculated? How it is calculated? फॉर्मूला आता होगा, वो कहाँ से आता होगा? number of favorable outcome by number of total number of outcomes. Number of favorable outcome by total number of outcome. अभी उन्होंने कहा some favorable outcome. आप उसमें हाँ भी बोल रहे थे. Modify also ma'am. So there need to be modification always. Time to time. And this duration of time.
There is no question. Question was question was about probability, but what he is explaining, there is a controversy in that. They are giving contradictory statements. मैम सर जो माइंड में बात है वो बाहर नहीं आ पा रहा है. इसीलिए तो मैंने एग्जाम्पल का ऑप्शन दिया. You can explain it with example. So कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में है, जैसे कि अभी एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो दिमाग में है, नहीं बात आ पा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल से बता दो. कॉइन का मैम. हाँ, कॉइन का एग्जाम्पल क्या है? कैन वी कम कॉइन का एग्जाम्पल है, डाइस का एग्जाम्पल है. डाइस इज एग्जाम्पल. इतना इलॉजिकल कैसे सोच लेते हो तुम लोग? किसको इतना समझ में आ रहा है? जरा बता देना मुझे. आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो बता दो अगर डिस्कशन ओवर हो गया है तो. एग्जाम्पल बता सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन इट? गो ahead. नो नो. Can't explain the example. Anyone else? Was very come. Yeah, come. नहीं नहीं, यही आ जाइए आप. बताइए. If I coin a toss, then outcomes will be Coin true. a toss. Toss or coin? तो head और tail आएगा. Yeah, head or tail आएगा, ठीक है. तो उसमें कुछ एक टर्म यूज कर रहा था, वो फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल कुछ था. So can you clear that term? What is favorable outcome? What is total number of outcome? What is some favorable outcome? Can you? You can do it. Come. कौन ऐसे बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? उसको जरा आइडेंटिफाई करना तो. अगर किसी प्रोबेबिलिटी एक मतलब एक होता है कि अनुमान लगाना एक तरह से उसके बारे में, ठीक है. तो अगर एक कॉइन लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसको टॉस करते हैं, या दो ही चांसेस में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. और हम लोग अगर बोला जाए हम लोगों की 4 बार उसको टॉस करते हैं उस कॉइन को, तो होता है टोटल नंबर सम, जो बोल रहा था सम ऑफ फेवरेबल टर्म्स, कि 4 बार हम मतलब उसको कॉइन करेंगे तो क्या आएगा, हेड का चांस कितना है. अगर जैसे 2 बार करते हैं, अगर मेरे को एक बार हेड आ रहा है तो 1/2 होता है. और जैसे कार्ड्स का लेते हैं कि 13 स्पेड्स कार्ड हम लोग जानते हैं कि टोटल 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है मैम. 13 उसमें स्पेड्स होता है. तो जैसे मेरे को जानना है कि 52 कार्ड में मतलब स्पेड्स कार्ड कितने बार आने का उसका चांस है, तो हम लोग 13 को ऊपर लिखते हैं और 52 को नीचे लिखते हैं. तो 1/4 है उसका फेवरेबल आउटकम. ये हो 1/4 is not favorable outcome. 13 is favorable. बैठिए. लास्ट क्लास में कितने लोग थे जो आज आए हैं? Who was present in last class? Anyone? 1, 2, 3, 4. You were in last class or not? Okay. So can any of you explain what is favorable, what is not favorable? Favorable number of outcomes or not favorable number of outcomes? What is favorable number of outcomes? It is the outcome in which we are favor. Which is going to favor the event to occur. ठीक है, बैठो. जैसे अभी एग्जांपल किसी ने दिया था, क्या था? 13 स्पेड्स होते हैं कार्ड में. 34 स्पेड होता है. अच्छा, ये तो हमको आज पता चला. जहां तक हम जानते हैं 13 स्पेड होता है. 13 स्पेड कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है. सो टोटल 52 कार्ड्स में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग स्प्रेड निकालना है, व्हाट वी आर 13 by 52. Yes. So these 13 will favor the event to occur. मतलब क्या होगा, इस 13 कार्ड में से अगर कोई भी एक आ जाता है तो फिर वो फेवर किसको करेगा, स्प्रेड अकर करने को, और इसी को आप बोलते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। सम फेवरेबल आउटकम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सम फेवरेबल आउटकम्स को कहीं हम डिफाइन नहीं करते। सम फेवरेबल आउटकम का मतलब हो गया इन 13 में से कुछ भी और कम कर लो, हो सकता है। सो वो टर्म आ जाएगा सम फेवरेबल। तो सम फेवरेबल कभी भी डिफाइन नहीं करना है आपको, ठीक है। फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल, फेवरेबल एंड नॉट फेवरेबल, यही ऑप्शन है। फेवरेबल अगर स्प्रेड 30 है तो नॉट फेवरेबल कितना होगा, 52 minus 36, 30 divided by 52. So ये क्या होगा, this is going to favor the event to occur, और वो event क्या है, occurrence of spread only. occurrence of non spread की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन स्प्रेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 by 52. ठीक है, समझ आया क्या है, फेवरेबल होता है, नॉट फेवरेबल होता है, और कुछ नहीं टर्म आएगा, ठीक है। एंड जब भी फेवरेबल और नॉट फेवरेबल टर्म्स को जोड़ोगे तो 1 आएगा। दैट मींस अगर इसको डिवाइड कर लो क्या आता है 1/4, ये डिवाइड करोगे क्या आएगा 3/4, एंड द सम ऑफ दिस प्लस नॉट स्प्रेड, ये 1/4 प्लस 3/4, और ये हमेशा 4/4 1 आएगा, ठीक है। So the sum of favorable events and not favorable events must be 1. ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में बताया था there are 3 types of probabilities. Anyone can explain it? 3 types of probabilities मैंने बताया था। Anyone from the last class? Can you? जो नहीं आए थे वो भी बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आपको बताना आता है, बता दो। तो इस वजह से कर दो। That means practice only. Practice तो आप लोग हम नहीं करेंगे। मुझे पहले ये बताइए, फिलहाल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ लो। बताओ 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज मैंने बताया था। व्हाट वाज दैट? सिंपल, मिक्स, मतलब कुछ भी एकदम लॉजिक लगा लो। हाँ, 2 टाइप्स। और व्हाट इज दैट? एक को मैम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक ये सब। चलो ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर सकते वो बारिश पड़ेगा, हाँ नहीं कर सकते कैलकुलेट। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला गलत सलत बता देता है। बारिश होगा। सब हो रहा है, बातें कर लेना। बताओ, कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं क्या। तो तुमने बारिश वाला कहा, तो बारिश तो कैलकुलेट करता है, मौसम विभाग क्या बताता है फिर? बारिश होगा, बता देता है ना बारिश होने वाली है। बाढ़ कह सकता है। हाँ तो ठीक है, जो बताता है वो गलत तो नहीं होता है। देयर इज 99% करेक्ट। हाँ 99% चांस है, और वो होता है। हाँ तो बारिश होता है, तो बारिश हुआ ना, आया था ना उसके पहले मौसम विभाग का। ये संभावना है, बोला जाता है संभावना है, बट दैट इज कैलकुलेटेड। सो डिफरेंस क्या है? चलो तुम बोल रहे हो बारिश होगी,
और एक मौसम विभाग बोल रहा है, दोनों में अंतर है या नहीं है? और वो अंतर क्यों है? उसके पास मैम ऐसे लोग हैं कैलकुलेटर है, उसके पास डिवाइस है, डिवाइस कौन सा है? मतलब जैसे कि मैम वो जैसे कि क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं, इतने साल से बारिश देखने का। मैम वो उस चीज को पढ़े हैं डीपली, और हम लोग पे थोड़े ना है मौसम विभाग। इसी 3 चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया था। नाम बताओ ना, मुझे एक्सक्लूसिव उससे में नहीं आता है। उसने कुछ ज्यादा ही टाइप पढ़ लिया, इसलिए नहीं बता पा रहा है। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये तीनों समझने वाली चीज है। पहला टर्म होता है जो सब्जेक्टिव ओपिनियन बेस्ड होता है, मतलब आप कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, किसी और से पूछोगे आंसर कुछ और आएगा, या हो सकता है तुम जो बोले वही कॉपी करके कोई और बता दे, ऐसा भी होता है। सो दैट इज सब्जेक्टिव, क्योंकि वो किसी पर्सन के ओपिनियन पे बेस्ड है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे मान लो कभी ऐसा भी होता है, किसी ने एक्सपेक्ट किया आज कोई सिक्सर लगाने वाला है, सेंचुरी मारने वाला है, तुम बोल रहे हो सेंचुरी मारने वाला है, कोई बोल रहा है 50 से ज्यादा नहीं कर पाएगा, कोई बोल रहा है 200 लगा के आने वाला है, लाइक ऐसा होता है ना। सो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, वो उस पे बेस्ड टर्म है, हटा दो उसको, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो टर्म क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है या नहीं? किसी और का एक्सपीरियंस जो है वो अपने हिसाब से बताएगा, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओगे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो दिस इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बस समझते हैं, जो जनरल टाइम में दिखता है, आपको जनरल लाइफ में मिल जाएगा, एग्जांपल्स इसका बहुत सारा भरा पड़ा मिल जाएगा, लेकिन इसको हम लोग एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करते, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो हर इंसान का कैलकुलेशन अलग आएगा। तो उसको हम मैथमेटिक्स के पार्ट में रख सकते हैं। 4 2 तुम जोड़ो तो 6 आ जाए, कोई और जोड़े 7 आ जाए, कोई और जोड़े 8 आ जाए, तो फिर वो रिजल्ट तो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टर्म होता है प्रोबेबिलिटी, वो हम स्टडी नहीं करते, बट दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड हो सकता है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर, और ये ऐसा नहीं है कि यूजलेस है, कभी कभी यूजफुल भी हो सकता है। मान लो कुछ ऐसे पर्सन जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं, और हो सकता है 99% चांस हो कि वो करेक्ट हो जाए। या फिर आपको किसी से सजेशन लेना हो, जिस फील्ड का आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस फील्ड में अगर आपको सजेशन लेना है, तो फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप सजेशन लेंगे, और उस पे आपको रिलाई करने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये यूजलेस नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। समटाइम्स ये बहुत रिलायबल भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है और किस कंडीशन की आप बात कर रहे हैं। दूसरा टर्म होता है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो तुम कैलकुलेट करते हो, ये सब पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो तुम कैलकुलेट करोगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई और भी करेगा तो वही आएगा, यही आएगा ना। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूरे क्लास में कोई भी कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी सबका 1/6 ही आएगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। सो दिस इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, था या नहीं? ठीक है, अब देखो इस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंजेस हो सकता है कभी कभी। जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसका मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। मान लीजिए आप बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एकदम रात दिन 24 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि कोई नहीं कर रहे हो, मतलब मान लो, ठीक है, 24 घंटे पढ़ रहे हो, देन फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 1/2। तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लाइक अभी ऐसे जो पीछे कर रहे थे, क्या पता, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। सो इन बोथ द कंडीशन, जब आप बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली क्या है, 1/2। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी हम गारंटी इतना तो ले सकते हैं कि 50% चांस है कि पास कर जाएंगे, मतलब यू आर इन पॉजिटिव कंडीशन, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी क्या है, इतना तो बोल सकते हो कि 50% चांस है कि पास कर जाएंगे।
50% चांस ऑफ सक्सेस है ना, 50% चांस ऑफ फेलियर है। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक मान सकते हो गलत भी है, क्योंकि कितना भी पढ़ रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी हाफ से बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है तो हाफ से प्रोबेबिलिटी घट ही नहीं रहा है या नहीं। सो यहाँ पे ये यूज बहुत ज्यादा होता है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इसके बाद एक और थर्ड स्टेज का प्रोबेबिलिटी आता है, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और ये जो है वो सबसे एडवांस स्टेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, मैंने कहा ना जो बहुत पढ़ रहे हैं 24 घंटे पढ़े जा रहे हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ये इंक्रीज कर सकता है और इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेगा। सिमिलरली कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या वैल्यू होगा, चेंज, वो भी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, उसके लिए बहुत कुछ जानना होता है, बहुत सारा थ्योरीज है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बहुत कुछ समझना होता है। ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है उसी का एक एग्जांपल है जो मौसम विभाग का जानकारी जो मैंने बताया, जो पिछले 20, 30, 50 साल का क्या रिकॉर्ड्स है, क्या क्लाइमेट सिचुएशन रहा है, कैसे में क्या अकर किया है, जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा के बेसिस पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो निकाला जाता है, तो वो ज्यादा रिलायबल है और वो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन पे बेस है। ठीक है, उसके पहले वही प्रोबेबिलिटी हाफ है, बारिश होगी या नहीं होगी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, इतनी % संभावना है जो आपका न्यूज सुनते हो वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और किसी पर्सन का ओपिनियन, अभी ये मौसम है, ये नक्षत्र है, ये ग्रह दशा है तो अभी बारिश होने वाली है, ऐसा कुछ, और ये होता है, दैट इज रिलेटेड, और वो भी साइंस ही है, तो फिर ये भी हो सकता है। तो ये तीन स्टेज का प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो। अब तुमको फोकस किस पे करना है, दैट इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ओनली। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी समझ लो क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकली यूजफुल है, बट हम लोग बहुत ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं ना जो टॉपिक पढ़ते हो क्लास में, एग्जाम में, और ये सब जो नाम है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जो टर्म्स होगा वो टोटली साइंटिफिक, जो भी टर्म्स यूज कर रहे हो। इसके बाद मैंने कुछ अलग अलग टाइप का प्रोबेबिलिटी बताया था, इवेंट्स बताया था, है ना, ये सब आप लोग नोट करिएगा। रिपीट क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ये रिपीटेशन ही हो रहा है, मतलब समझ लो जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे हो वही दोबारा तुम अभी पढ़ रहे हो, ये बता चुके हैं। ठीक है, हाँ लिखवाए थे तो ये तो तुम लोग को लिख लेना चाहिए था, अब तक आज आए थे तो लिख लेना चाहिए था। कॉपी भी क्या क्लास में, तब तो फिर लिख के भी क्या फायदा, तब फिर लिख के भी कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लो। टर्म्स डिफाइन तो कर चुके थे ना, कितना बताया हाँ बोलिए, लेके आइए ना, आप भी लेके आ जाइए, देखिए हम क्या है तो मुझे लिखवाना है क्या, चलो ठीक है लिखो। Probability is the chance of occurrence of any event. Probability is the chance of occurrence of any event. It is given by the formula probability of an event D is equal to
number of favorable events, outcomes कर लो, outcomes divided by total number of outcomes. Outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. इसमें तुम शायद M by N ऐसा कुछ पढ़े होगे. M क्या है? Number of favorable ऊपर लिखा हुआ है, मैं जल्दी कैसे भूल गई, इसीलिए तो लिखवाना का कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को. टोटल नंबर ऑफ, ठीक है. नाम वाम याद रहता है, नाम एड्रेस क्यों भी भूल जाते हो, कभी कभी हो जाता है. ठीक है, लिख दीजिए. इसके बाद एक और जो हम लिखिएगा नोट करके, ये भी चेक करना पड़ेगा नोट करके. ग्रेजुएशन में आ गए. चलो लिखो नेक्स्ट. The range of probability is 0 to 1. 0 less than equal to 1 probability यही है. ठीक है. Repeat again, ma'am. The range of probability is, ये लिख लीजिए. ठीक है. अब ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है when probability is 0, when number of favorable outcomes is 0. मतलब अगर पॉइंट टॉस कर रहे हैं, हेड और टेल है, ठीक है, पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5, 0 होगा. क्यों होगा 0? इसमें तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, 0/2 लिखेंगे, अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा. और क्या ऐसा होगा कभी कि तुम कॉइन टॉस करो और 5 लाने की प्रोबेबिलिटी निकालो? या आ जाए कभी गलती से? गलती से आ ही नहीं सकता है. So this is impossible. So when probability is 0, the event will never occur. लिख लीजिए ये भी. ठीक है. When probability is 0, then that is impossible event. When probability is 0, then that is impossible event. When probability is 0, then that is impossible event. मतलब impossible क्या? होने का 1% की चांस नहीं है. ठीक है. 0.0 के बाद 1000 बार इसको डाल दो, फिर 1 डाल दो, तब भी नहीं होगा. ठीक है. इम्पॉसिबल का मतलब यही होता है. That means there is 0.0. कितना भी 0 डालते चले जाओ, अगर बहुत 0 डालने के बाद भी 1 है, तो भी there is a chance. ठीक है. उसको इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 0 है डायरेक्टली तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं है. चलो नेक्स्ट लिखो. When probability is 1. When probability is 1, जरा देखो इसमें क्या होगा. 1 कब आएगा? हाँ, हेड टेल एक साथ कैसे ला दोगे तुम?
तो उसको बोलोगे हेड टेल आ गया। हाँ संभव तो है तभी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा सिक्का हो सकता है दोनों में हेड ही हो। चिपका देंगे तो दो पॉइंट को चिपका देंगे तो हो जाएगा। ऐसा एक सिक्का था मैम हर हीरो के पास होता है वैसे सिक्का। वो बनवाता है अलग से। यस मैम। चलो देखो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 आने का चांस क्या है पढ़ लो। जब आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो, कैंसिल करके 1 ले आओ। और ये कब होगा, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। दोनों अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तभी आ सकता है। मान लो 2/2 तो 1 आ सकता है। दो जगह में खाना खाएंगे तो पेट भरेगा। हाँ तो ये सर्टेन है। क्या बोलो खायो। हाँ हाँ किसका, इसका एक ही ऑप्शन है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है बताओ जरा हमको। हाँ बोलो। नहीं दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी वेदर कंडीशन, वहाँ वेदर कंडीशन आ जाएगा। और कुछ जो सर्टेनली हैपन, that means you are going to be, you are growing day by day, है ऐसा होगा ना। मतलब विजिबल है या नहीं, दैट इज हाँ होगा बहुत ऐसा सिचुएशन जहाँ पे 100% ऑप्शन पॉसिबल है। ऐसा क्या है नहीं घर नहीं जाओगे और कुछ एग्जांपल। रुकेंगे तो घर ही ना जाएंगे। वैसे केसेस में जहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दैट विल हैपन, दैट विल श्योरली हैपन। आप आइए तो मैम गलती करेंगे तो ठीक है, मतलब वही चीज है। यहाँ पे ये केस होता है, इसको समझना। देखो श्योरली कुछ भी बता पाना इज नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे हम उस इवेंट की बात कर रहे हैं। हो गया हाँ तो टूटेगा ही ऑप्शन है, तो टूटेगा नहीं टूटेगा वाला ऑप्शन नहीं आएगा, टूटेगा एग्जैक्टली। तो वैसे इवेंट्स की बात कर रहे हैं इसमें जो हमेशा होगा, ठीक है। मतलब बताओ, तो उसी को लिख रहे हो, पहले वो समझ लोगे तब ना। अब मान लो कोई ऐसा डाइस थ्रोइंग काफी, जैसे सिंपल एग्जांपल है, पेपर ले लो, चलो सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। कॉपी लीजिए, बोथ साइड रूलिंग पेपर है तो आपके पास क्या है, रूलिंग पेपर ही मिल रहा है ना दोनों आउटकम में, ठीक है। तो आप मान सकते हो, तो एक आपके पास इवेंट है, एक पेज है, 1 पेज, बोथ साइड क्या है, रूलिंग पेपर है, दूसरी साइड भी है रूलिंग पेपर ही। तो आउटकम क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रूलिंग पेपर 2/2 and that is, ठीक है, that will certainly happen. So अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, अगर ऐसा होगा, ठीक है, 100% श्योर है ना, 1 ही आएगा। दोनों रूलिंग पेपर है तो दोनों में से कोई भी एक आएगा तो रिजल्ट वही है, ठीक है। सो इस केस में भी आपके पास क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वही रिजल्ट आने वाला है, दैट विल सर्टेनली हैपन। सो यहाँ पे आप पॉइंट लिख लो, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 1 द इवेंट विल सर्टेनली हैपन।
certainly occur. ठीक है? The event will certainly When probability is 1. when probability is 1, the event will certainly occur. ठीक है? That is certainly going to happen. ये भी लिख सकते हो. ठीक है? हाँ, sure होगा. इसको बोला जाता है sure event. Sure event भी बोला जाता है. इससे पहले वाले को impossible event भी बोला जा सकता है. ठीक है? So impossible event वो event है जो कि कभी नहीं होगा, और sure event वैसा event है जो कि 100% होगा ही होगा. ठीक है? अब सोचो, जब जीरो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुमको? 0 और 1 के बीच में रेंज था ना आपका? Yes, ma'am. 0 में तो इम्पॉसिबल हो गया. इम्पॉसिबल ही है तो वो तो होगा ही नहीं, कभी होगा? पॉसिबल ही नहीं है. 1 है वो तो पढ़ो या ना पढ़ो होके ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते हो उसका. तो हम जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, दैट इज इन बिटवीन रेंज ऑफ 0 to 1. वैलिड ये है, एक्चुअल साइन ये है, तो जो साइन इसका देंगे वो यही है. लेकिन आप पढ़ते एक्चुअल में इसको जब 0 होता है, इम्पॉसिबल होता है, एग्जाम ही नहीं दिया है, रिजल्ट किसका आएगा? मेरा रिजल्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हम तो एग्जाम दिए नहीं. सिंपल है. तो दैट इज इम्पॉसिबल. और एग्जाम दे दिए हैं, अब पास हो या फेल हो, रिजल्ट तो आएगा ही ना. सो दैट विल श्योरली हैपन. तो जब 0 हो जाएगा वो इम्पॉसिबल है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जो 1 है वो तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, उसको चेंज ऐसे भी नहीं कर पाओगे. सो उसको भी स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है. तो जो हम एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, दैट इज इन बिटवीन 0 to 1. जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा हमेशा. 0 भी आंसर नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा. ठीक है? 0 आएगा मतलब वो तो होगा ही नहीं, 1 आएगा तो वो तो होकर ही रहेगा, कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है? सो यही चीज यहाँ पे समझना है. सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन प्रोबेबिलिटी, दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1. ठीक है? समझ आया ये चीज? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही 0 हो जाए, आउटकम ही 0 हो जाएगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं. तो फिर प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हो? तुम पहले ये बताओ ना, प्रोबेबिलिटी किस काम का निकाल रहे हो जिसमें आउटकम ही 0 है, मतलब कुछ होने का चांस ही नहीं. Probability 1 है, वो भी तो infinity है ना. कहाँ इंफिनिटी तुमको दिख रहा है? क्योंकि वो probability अगर 1 है तो वो चीज होगा ही ना. 2/2 में इंफिनिटी कहाँ दिख रहा है? पर वो वर्ड तो होगा ना, कंप्लीट तो होगा ना. व्हाट इज वर्ड? कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉप ना हो जाएगा. 1 कैसे होगा बताओ ना हमको जरा. इनफिनाइट कैसे होगा? This will never 0. This will not be 0. डिनोमिनेटर में 0 कैसे आ जाएगा? कोई भी काम करोगे तो आउटकम कुछ तो होगा, और कुछ भी आउटकम नहीं होगा मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर स्टडी ही क्यों कर रहे हो? सिंपल. सो आउटकम जो भी होगा दैट वुड नॉट बी 0. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कभी 0 होगा ही नहीं.